Look, friends, I must tell you that you know I'm a very emotional person. I am a very emotional person, and when I see these modern bathrooms, my heart cries. Yes, because there's no soap in the bathrooms these days. Seriously, all of you, don't look at me like, brother, where are you staying? There is soap, sir, there is soap. But it's not that Bata soap. Remember that? Solid Lux Lifebuoy. Remember Lifebuoy? Just hit me on the head and my head will burst. Remember Lifebuoy, which flows down the drain? Stop it. And then mom says, wear a bag in your hand and take it out. I know not everyone understands the one with the bag in your hand. But the one who does understand it, that person has grown from the grassroots level. Because he wore a bag in his hand, lay down near the drain, and put his hand in, mom, and I can't get it out. There is soap in the bathroom, but it's only in liquid form. It's only in liquid form. Sit down to take a bath. Have you noticed? People used to scrub their entire body with 1 bar of soap. Now, there's a new container for washing every part of the body. Sit down to take a bath, and you have to sit with 4 containers. And what all should I wash separately? I'm sitting down to take a bath. Opening the container here. Do you have face wash? Wash your head separately, your chest separately, and your armpits separately. Really? This product has come out in the market. It's for whitening your underarms. Yes, brother, it's come out. It's for whitening. Who's this obsession with whitening? When did you think I'd go this far? Who's doing this? Who's doing this? Who's this guy who goes to meetings and says, brother, great. Come on, deal done. Let's get the deal done. Come today. We'll just fight like this, arm in arm, and that'll be fun. I'll only issue the check after that. Come here, fight. Who's doing this, man? Is this going too far? This one's t-shirt rides up a bit. It's a good view. Sorry, ma'am, sorry. Now you had to see it. You'll remember it. You'll never forget it. And I've got a slight belly, you know? I mean, it's not too much. Not like a transformation. But enough that all my shorts have their straps blown out in the middle. Relatable content. Relatable meaning if I wrote, jockey, from here to here. All the jockeys are in this condition. I don't know if someone just cut the middle of the jockey like that. The underwear is always folded. No, go to the bathroom every time. How does something new come up, man? There's one in the bathroom. Have you seen bum cream? You guys, know bum cream. How many people don't know? Many won't know. You'll understand from the name, right? If it's bum cream, it's not meant to be applied on the face. As far as I'm concerned, isn't it? When in evolution did humans think that our butts also need cream? When did humans think that one day, standing naked in the bathroom, cream in hand, we would do this in our butts? We were born for this, to do this. This side was not visible. Look, this is happening. Who thought? We cannot control ourselves. Everything is different, brother. Everyone's eyes are different. Some have normal eyes, some have hairy eyes. Brother, a different whirlpool is forming, a new thing in the bathroom every time. My question is, how can something new come up every time? Have you seen a loofah in the bathroom? You guys, know what a loofah is? Who doesn't know? Raise your hands, raise your hands. Brother, I don't know. Brother, I don't know. Brother, well done, well done. And it's not like that. All 4 of you have never seen a loofah. Now, it's in your house, so you've heard of it. You've seen it hanging on the bathroom faucet. It's not flower-like. It's not the body's Scotch Brite. Have you seen it? Haven't you? Oh, have you seen this? This is also a magic show. Brother, he drove the pigeon out of the backyard. Kapoor Dada had a parrot. He brought parrots of every color. You know, for 3 years, I don't know what's been in my house. I swear, I had no idea. I thought my wife was fond of decorating the house. So she even decorated the bathroom faucet. It hangs on the faucet, right? It's like that. So one day, I noticed it. I mean, I've seen it every day. Today, it occurred to me, what is it? So, I went and looked. It's a rough, net-like texture. So I thought maybe my wife bought it for cleaning my heels. Because everyone remembers the old houses. Do you all remember the struggles? Remember the rough ground? Remember, scrub it here. Here in Mongol Bazaar, that used to come, but not the stone,
just scrub it. Now everyone has installed tiles, so I thought maybe my wife brought it to clean my heels. The next day, sir, for the first time, I cleaned my heels with a loofah, and I swear, they were so beautifully clean. It was fun. I felt like cutting my heels off and putting them on my face. So beautiful, so beautiful. They were like cracked cream heels, absolutely beautiful. So now I've been cleaning my heels with a loofah for 3 months. This is the context of this joke. Now it'll begin. So that day, sir, I was in the bathroom, bathing naked, polishing my loofah, forgetting everything else. Come on, brother, I don't know what sins from my past lives have come to light. What mistake did I commit? Sir, I forgot to lock the door. Brother, my wife suddenly opened the door and entered. At first, I was worried that I wasn't making a vlog of this. I hope I don't make a vlog of this. Hey guys, look, he's been caught naked. Look, friends, even after zooming in, it's barely visible. Look, zoom, zoom, zoom. Even after zooming, it's barely visible. Hey guys, he has a camera in his hand, he can say anything. And sir, he must have been caught naked in such a dirty, deplorable situation, right? You know, a person should never be caught naked, sir. Being naked requires both the parties' consent. Getting caught is the only thing that shocks others. What have you seen? You were so dirty, you should sit on the ground. Your entire belly is piled up. It doesn't happen that sometimes, when you sit down, the entire flower doesn't settle down. Hey, where did it go? I don't know. The entire flower looks like it's completely kneaded. He's cursing himself. He ate too many momos. He's too full. My wife was completely shocked to see me, because we've never seen each other under bright lights. I mean, we have seen each other sometimes, but normally, Indian couples don't see each other under bright lights. We don't have that culture of watching, and after seeing, we did it. Our bodies are in such a state. What will we do? Let's touch the ass. Come on. Let's play with the belly. Come, knead and seal it, you bastards. My wife was completely shocked to see me. What is she saying? And as soon as she asked me, what is she saying? I didn't realize initially that she was talking about a loofah, because I was naked. And brother, when so much water is filled, a boy shrinks, brother, you know. There's nothing to be embarrassed about. So I thought she was talking about something else. So when she asked me, what is this? I got completely defensive and said, is this it? And she said, what are you doing with this loofah? I said, what's a loofah? She said, you have it in your hand. I said, it's a broom. It's a broom. I've been checking it every day. Brother, I haven't told you what I've been doing with it for the past 3 months. I haven't told you, sir, what have I been doing with it for the past 3 months? Because it's been there every day. I came to me and put shower gel on it. I didn't tell you. I've been cleaning my head with it for 3 months. And I even cleaned the wash basin twice. And just to let you know, those who don't know, friends, you don't know, sir, you don't know. This is a net loofah, the one with the net. Okay, there's a similar product in the kitchen, made of iron. That's not a loofah. Don't rub it with shower water. Otherwise, you'll be caught by the metal detector at the airport your whole life. PPP, it's metal. It goes in and stays in. My question every time is, how does something new come into the bathroom every time? A new thing comes into the bathroom every time? Have you seen that V-wash? Quote, you guys know what is V-wash. Who all don't know? Raise your hands. Raise your hands. Well done, men. Well done. Well done. Raise your hands, brother. There's nothing to be ashamed of. Ma'am, you don't have to tell her. Raise your hands, brother. You are the honest person. I am telling you. There are at least 10 more people sitting here. Tell me who doesn't know. Everyone else knows. Tell them everything or I will look you in the eye and catch you. His head is laughing. Very generic information for you guys. Okay, firstly, we wash does not mean that we all wash together, okay? I've invited a few friends tomorrow. Come on brother, open the door. All the brothers will wash their hands today. Single quote, we wash is basically for women. It's for intimate hygiene. It's for vaginal hygiene. Do you understand? There's a separate section for girls to wash. And nothing for boys. Will we keep rubbing soap all our lives? Dude,
What's this about maintaining health in life? And man, last time I was taking a bath with 4 cans. While bathing, I got confused with 1 can. Maybe I didn't pay attention to that can. And man, I accidentally washed my face with the washcloth. My whole mood is ruined. I said, is this the punishment? Is this the punishment to never go down in my life? Quote. I know half the people didn't understand. They didn't even notice. These 2 guys have it all over their faces. What, brother, go down. Why are they laughing? Are they talking about something warehouse related? Quote. But these 2 didn't understand. And I saw that couple in the dark behind. The girl said to the boy, you know, my Chaman Chator. Did you think they were talking about Chad and Papu here? This one is very dirty, man. You shouldn't call anyone Chaman Chator. And you know what is the first thing about this joke that now you will remember me? In one of the weirdest moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a 3, sir. And I know exactly where I will go, and remember you know exactly where I will go, and remember when exactly the atmosphere is in the Chaman Chator. Yes, you are the Chaman Chator. CBSE तो अके मोड़ देंदे पक्के तोड़ देंदे स्विच बोर्ड फेल किते प्री बोर्ड 12वीं तक कोचे आपा दे दे के तक्के Story, are you guys up for a small story? Yes. You guys might have seen it, some of you. It's a small story from my school. When I was in 8th standard, there was this kid in my class. And he had just 1 testicle. I know, this is not funny. This is not funny. Funny part is, उसको लगता था पूरी दुनिया का एक ही होता. You know, it's like, sir, आपका क्या नाम? अंकित जी, आप कितने? जितने होते, हमें क्या पता कितने होते? हमने थोड़ा देखे हैं आपके? But let's assume, Ankit, you have 2. For common understanding, Ankit has 2 testicles. और अंकित मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके 3 हैं, तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से? आपकी छोड़ो इनकी दुनिया नहीं बिखर जाएगी अचानक से? नहीं, आप बाहर जाके गाना नहीं गाओगे, छन से जो खोए एक गोटा. तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस टिल 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि स्कूल में ऐसे बात थोड़ा करते हैं. भाई तेरे कितने हैं? भाई तू कितने लाया आज? तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस. तो हमें तो कब जाके पता चला. रिमेंबर दैट फर्स्ट बायो क्लास? याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास जिसमें बताते बेटा ये दोनों डायग्राम मिलते हैं तो खूब मजा आता है. ये दुनियादारी है असली चीज. ये हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब चूतिया पे हटाओ. दिखा दे ना दोनों पेज. मजा. डायग्राम को साथ में लाओ, जिंदगी का आनंद है बेटा. तो ना सेम क्लास में मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, राहुल नाम था इसका, और वो देखे जा रहा है डायग्राम, और लड़के वाला डायग्राम देख रहा है और देखे जा रहा है. और उस टाइम मुझे नहीं पता होमोफोबिया गलत चीज है. उस टाइम तो हम सब होमोफोबिक थे यार. तो वो देखे जा रहा है डायग्राम. कह रहा भाई सुनियो जरा. मैं कहा मेरे से बदतमीजी नहीं, समझ गया? ये सब नहीं चलेगा. कह रहा भाई सुन तो. क्या भाई गलत बना दिया है. मैं कहा एनसीईआरटी ने गलत छाप दिया, रिप्रोडक्शन गलत छाप दिया. मैं कहा दिखा जरा. तो मैंने चेक करा
मैंने कहा हाँ यार टांगे थोड़ी टेढ़ी तो लग रही है। कह रहा बे टांगे नहीं, ये दो किसके होते हैं? मैं भाई ऐसे ही तो होते हैं। किसके? मैं कहा भाई मेरे तो दो ही हैं। तो मुझे कहता हो, कहता भाई लगता है तुझे वाली प्रॉब्लम हो गई है। और भाई साहब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि एक बार को तो मैं खुद ही कांप गया। मैंने कहा कहीं मेरे तो दो नहीं है कहीं, सिर्फ कहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है यार कभी कभी। मैंने कहा कि मैं इतनी इस दुनिया का ऋतिक रोशन। उसको भगवान ने एक्स्ट्रा अंगूठा दे दिया। तो मैं तो फुल पैनिक में, मैं फुल पैनिक में आ गया यार। मैं इतना पैनिक में, वो तो शरद बैठा था। मैं शरद भाई तेरे कितने हैं? शरद कह रहा भाई मेरे 43। मैं भाई क्या? मैं भाई गुच्छा ले घूम रहा है क्या? मैं कहा भाई गोटे की अंगूर है। मैं भाई तो चबा के खाया कर, तेरे इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो मुझे कह रहा मेरे मार्क्स 43। मैं मार्क्स तेरे 40 कितने यार? क्या मार्क्स की बात हो रही है? तो उस दिन मैंने पूरी क्लास में चेक करा, मतलब ऐसे चेक नहीं करा, से वर्बली चेक करा कि तुम्हारे कितने। अच्छा 2, अच्छा ओके। तुम्हारे कितने हो गए? 2। तुम्हारे 2, अच्छा। गलती लड़की से पूछ लिया, उन्होंने थप्पड़ हाथ हराम जाती। तो उस दिन पूरी क्लास में चेक करा हमने, टोटल 47 गोटे निकले। 47। नाउ हियर कम्स द लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन। तो बताओ क्लास में कितने लड़के थे? तो उस दिन जाके उसे पता चला कि दुनिया के 2 हैं। बट द कैच इज, उस दिन हमें ही पता चल गया। इसका तो एक ही गोटा है रे। भाई साहब इतने हरामी बच्चे मेरे स्कूल में आग की तरह खबर फैला दी यार। राहुल का एक ही गोटा। इतने सारे बच्चे भाग भाग के भैया राहुल भैया दिखाओ, किधर राहुल भैया दिखा दो। सामने वाले स्कूल के बच्चे अपना स्कूल टाप टाप के हमारे स्कूल में आ रहे। अरे आज तो राहुल को मिलके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। हमने कभी नहीं देखा यार अद्भुत नजारा। मजाक नहीं, हमने राहुल की मुंह दिखाई तो उधर पे टिकट बेची है। इतने बदतमीज बच्चे यार मेरी क्लास में। उसको अगले दिन वो दे दिया यार, पेन लागे यूनिबॉल। कह रहे किससे? इतने हरामी बच्चे में। उसका नाम रख दिया स्कूल में, नो बॉल नाम रख दिया। नो बॉल। वो कॉरिडोर में चल रहा बच्चा, नो बॉल। देखो थोड़े दिन तो हमने मजाक करा। देन वी वर लाइक डूड, ये तो गलत चीज़ है यार, ऐसे किसी का होता थोड़ा है नेचुरल। तो हमने कोई नहीं यार, एटलीस्ट विल टेक यू टू डॉक्टर वंस, देखते हैं क्या सीन है। तो हमने क्लास में सबने पैसे इकट्ठे करे, चंदा इकट्ठा करा, अंडर द एजिस ऑफ गोटा चंदा। हम लेके गए उसे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताओ क्या पता चला? एक नहीं 2 ही थे। वो एक हल्का स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हल्का सा ऊपर आ गया। डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेशन होगा, सही हो जाएगा। और इसकी तो ऐसी फटी भाई साहब, ये तो इतने पैनिक में आ गए, कह रहा सर ऐसे दबा दबा के नीचे ले जाओ ना सर। सर ऐसे जा सकता, कुछ ऐसे कर करके ले जाओ। डॉक्टर कह रहे मैं बैठ के आटा मल रहा हूँ ना। हाँ जो तेरा यहाँ पे लगाया बेला, ना जा बेटा आ जा। क्या जाओ ना पापा को लेके ऑपरेशन होगा। भाई साहब इसकी तो फट गई यार, क्योंकि अपने बाप को बताना मुश्किल है ना ये चीज। ये थोड़ा बता देगा कि पापा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। पर वी आर वेरी सपोर्टिव, टेंशन मतलब हम चलेंगे तेरे साथ यार, हमारा मोरल सपोर्ट है तुझे।
और हमें कोई समय तो मजे लेने दे यार। तो जाकर पापा को बताया, उसने बड़ी मुश्किल से कहानी सुना के कुछ तो बताया। पापा की तो भाई साहब ऐसी ही फटी, हमें लगा अंकल का एक गोटा के मुंह में ही ना आ जाए कि अंकल आप तो अंदर करो, क्या हो गया है, कहीं 2 ऑपरेशन ना कराने पड़ जाए। लाइक नॉट लिटरली, फिगरेटिवली, कि अंकल वॉज इन सो मच ऑफ शॉक कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया यार। बट स्टिल अंकल वॉज सपोर्टिव कि चलो कोई नहीं है, तो अपनी औलाद ही, ऑपरेशन तो करानी ही है। तो डॉक्टर लेके गए, 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करा, और बाहर हम दोस्तों ने सट्टे लगाने शुरू कर दी। भाई आएगा 1 का 2 आएगा, नहीं 1 का 2 आएगा, 1 का 2 आया, सीन है कुछ। आधे घंटे बाद ऑपरेशन कर के डॉक्टर वापस से बाहर आया, तो यहाँ पे ना इसके पापा खड़े थे और यहाँ पे हम तीनों खड़े थे। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर वाज लाइक, सर द ऑपरेशन वेंट एब्सोल्युटली फाइन, इट आल्सो लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट वन स्मॉल थिंग, योर सन हैज टू मास्टरबेट वंस सो दैट वी नो ही इज प्रॉपर्ली फर्टाइल। और ऐसे बोल के डॉक्टर चला गया, जैसे कि उसका बाप और हम रोज ये सब बातें कर रहे हैं। केमिस्ट्री देखनी चाहिए ना यार। तो अंकल ने हमें देखा, हमने अंकल क्या बोले डॉक्टर साहब? डब्बा डब्बा क्या बोले, क्या मोटर चलानी है क्या? अंकल ने कहा कुछ नहीं, मैं बता के आता हूँ, उसे कुछ बताना है। तो अंकल गए बताने, पीछे पीछे हम भी चले गए क्योंकि हमें जानना था यार कि ये कॉन्वर्सेशन कैसा है यार, बिकॉज नाउ टेबल्स वर टर्न्ड। अब एक बाप के लिए मुश्किल है ना बच्चों को बताना कि बेटा डमरू बजाने का वक्त आ चुका है। तो मैं गया, पहले गया, मेरे को कह रहा, लेटे लेटे कह रहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी सी हो गई है। मैं अपने बाप से बात कर जरा, तेरी जिंदगी पूरा चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तेरा मोक्ष मिलेगा आज ही। पापा भी भाई बच्चे को कैसे बताए, मुश्किल है ना पापा के लिए बताना बच्चे को। पापा ने कहानियां बनानी शुरू कर दी, कह रहे बेटा देखो यही तो जीवन का सार है। बेटा जीवन क्या है, कोई बेटा बाद में बड़ा होता है, कोई बेटा पहले बड़ा हो जाता है। बेटा क्या है, जीवन है जो जीवन और मृत्यु। कह रहा पापा हिलाना है क्या? पापा कह रहे बदतमीज बाप से ऐसे बातें करता है? हाँ वही करना है। तो गया अंदर यार, घर गुरा करके आया, कुछ नहीं बचा, बाप बेटे में क्या डिफरेंस बचा यार। चेकअप करा तो पता चला फुल फर्टाइल। डॉक्टर खुश, बाप खुश, हम खुश। और हमने स्कूल में फोन मिला दिया कि स्कूल को सजा दो, स्कूल में तो कार्निवल होना चाहिए। भाई आ रहा है 2 गोटे लेकर के, मजाक नहीं, हमने पूरा स्कूल सजवा दिया यार। थीम रखी स्कूल की 2, जैसे हमारे स्कूल में सारे गमले अलग अलग पड़े हुए थे ना, सब गमलों के 2-2 जोड़े बना के रख दिए। वो असेंबली में घुसा, गाना चलवा दिया, मेरे 2 बोल रहा था, नहीं कर राम दूजा लखन। क्लास में घुसा, क्लास टीचर ने खुद ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया यार, 47 + 1 = 48। दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं होता मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी, और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली, टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ, मैम मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोल ली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया,
वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा, मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज ए वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ है, 5 वाले डंबल वहाँ है। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहाँ पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, मेरे को जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ, और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मेरा कहा शो तो मैं करके रहूँगा, कोई पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट, मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली, मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया, फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी तो असिस्टेंट थी। और आप खुद गैस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? भाई वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है बॉल में, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? एज गार्ड की एड देखी है? Remember एज गार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं, उनके कच्चे नहीं तो बाइक से उतरते। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ है यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मैं मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट यहाँ, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उस पर जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। मैं कह मुझे नहीं आता। कह रहे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले की कहाँ पे लगाई थी?
क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस नहीं बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते हैं अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था। मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ ना आया। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसे उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ये सब बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे पहले लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, जान के सेलिब्रिटी खड़े हुए यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां मैं झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबोऊंगा उन्हें, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहाँ से वॉश बेसिन तोड़वा के ही जाता मैं वहाँ से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहाँ पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ।
मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए। क्या बदतमीजी है ये? मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी, मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है। तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं क्या? कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर जाओ, मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी,
जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू आ रहा। फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे, आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं। इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना है? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो, तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? जैसे अपने नया कुक अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोगों को याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता, दे हैव नो आइडिया। अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था, तरला जी के लिए मुठूस तू भी खा ले। तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी, जेन्युइन चीज थी यार। पर एक सेकंड, कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ। तरला जी 2 सीटी हो, 3 में चावल उतारने, क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने, मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई, उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए। और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसा रहे, घुस जा बहन वाले अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डाले, इसमें वो स्वाद अनुसार डाले। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काट के तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है भाई। इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में। और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, जो बोलते थे लिख लेती थी। उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही। घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं।
मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी। कसाटा पे धनिया, मैंने कहा मम्मी क्या कर करी, चुप रहा, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने ये तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वॉज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ, उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव, एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन। और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं। और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग। और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में डालो, दूध में डाल। मैं कहा बॉर्नविटा हट तेरी माँ की, हट। नहीं होना लंबा में भंडना, हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया। वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है। फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूँ। श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? आई वॉज द फर्स्ट वन टू प्ले मूत निंजा। देखो, वी ऑल नो ही इज अ ग्रेट शेफ, राइट? ही इज अ पद्मश्री, ही इज अ ग्रेट शेफ। ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम। क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी। एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो चैनल कल्चर है, ही इज द वन हू स्टार्टेड इट। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जोक कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे, भाई बंदियां हॉर्नी हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो। और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो। और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ
हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है. अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार. और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है. डू चेक इट आउट. वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है. इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो. उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा पे फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग्स, उसमें फॉलो कर दो. थैंक यू सो मच गाइज. बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है. यूके, एम्स्टर्डम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन. तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है. प्लीज़ चेक इट आउट एंड सी यू गाइज. थैंक यू एंड शेयर द वीडियो. हाँ, बिकॉज भाई वेब ओके, इफ़ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट. थैंक यू. These days people give gifts on birthdays and other occasions, but there are people who give gifts and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना, उससे दोस्ती तोड़ दो, because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा थॉट डालूं, उसे वो दूं. The whole idea behind giving a mug is, भैया सर दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है. And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read "Never give up." And हमने, मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ. फोटो ID, सर ये है मग, चाय भी उठा लेंगे. I also love watching cricket and I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है, वरना अफगानिस्तान का शायद देखती होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है, लोग खेल कैसा रहे हैं. But there are different commentators, they have their own styles, you know. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit, Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन फॉरवर्ड जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S written on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोग के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना, एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांडू, मुझे पता है. And in his Urdu Punjabi accent when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. This guy does not have letters between words. This guy does not have letters between words. This guy does not have I. It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है. And I'm like, dude, India? अच्छा मेरे देश को कच्चा बोला तूने. You should go back to Pakistan. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. विराट कोहली. दिस इज हाउ एक्सप्लेन विराट कोहली. विराट बंदा बहुत तगड़ा पाजी. विराट जब छक्का मारता है ना, बॉल पूरा पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है. अरे व्हाट द फक इज बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोलो इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए अरुण भाई, वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूती. आप क्या मचा रखा है तूने यार? तो बंद करना, कोई ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई, वो बदल गए हैं, ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है. अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो. अरे अब इनकी जांघें देखो यार, जांघें. The moment he says जांघे, cameraman cuts it to जांघे, like this part on national television. I am watching मोहम्मद शामी's जांघे. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांघे देखी, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And
And then he starts explaining his run. नहीं मोहम्मद शमी दौड़ रहे, मोहम्मद शमी दौड़ रहे, मोहम्मद शमी की जांघें हिल रही है, जांघें हिल रही है. And I'm like, dude, इसकी जांघें हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा, मोहम्मद शमी ने ढीला अच्छा पहना यार. नहीं, मोहम्मद शमी ने पटक के बोल डाला, मुकल्लम ने करा played. Guys, मुकल्लम is Brendan McCallum from New Zealand. सॉरी. पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या से क्यों आप? नहीं, आपको सीरियसली पूछना चाहिए. आप मजाक नहीं उड़ा सकते. नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा में. सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते. थैंक यू. आ गया वीडियो, आ गया. सब छोटे छोटे राजकुंद्रा घूम रहे हैं नहीं. हेलो, नमस्ते. नमस्ते चाई जी, कैसे हैं? अरे रुक जाओ, पहले इतने जोश में क्यों हो? देख तो लो कॉमेडियन है कैसा. कहीं बीच में रियलाइज हो गलत लग गया क्या पैसा? 30 पाउंड चला गया है. हाँ भाई, 35. ओ यार भाई, हाई एनर्जी में निकलो यार तुम आज एकदम. मुझे लग रहा है ये शो के बाद तुम सब बाहर निकलोगे फिरंगियों की फटने वाली है. अरे ये रिवर्स राज हो रहा है क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे इमिग्रेशन में? 10,000 बंदे आ रहे हैं, क्लियर करने वाले 4. हाँ भाई, वो इमिग्रेशन की लाइन देखी आपने? उसमें दोस्तियां बन गई है. 8-8 चक्कर मारने पड़ रहे. हेलो भैया नमस्ते. फिर इधर मारे, फिर दिख रहा हाँ भैया नमस्ते. तीसरी बार कह रहा जाना है, जब अपना जा, मुझे नहीं बात करनी, तेरे से जा. भाई इतनी 8-8 लाइनें चल रही है, राउंड मेज चल रहा पूरा. यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया. क्या एक बंदा मूंगफली नहीं बेच रहा वहां पे. इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहां मूंगफली बेचने की. यार टिंडर मैच हो रहे, पता है आपको उस लाइन में? कसम से टिंडर मैच हो रहा है. मैं एंड में था, एक लड़की का टिंडर मैच हो गया. लड़का आगे बैठा हुआ था शायद, एकदम फ्रंट रो पे था वो. तो उसने कहा इफ यू लेट मी कम इन फ्रंट, I'll let you come inside me. इस बात से लड़के ही खुश हुए हैं, क्योंकि लड़कियों को पता है ये झूठ है. ऐसा कहीं नहीं होता. इसकी तो आंखें ही खुल गई सेकंड रो वाली की, पता है. I'll let you come inside me. What is this? Never experience. You're with, is it like one family? Two of you together? You're with this guy? He's a friend. ठीक है भाई, कोई नहीं. वो नॉट अ टिंडर. कहाँ से आए हो? गंदा टी निकला. नॉट अ टिंडर में टिंडर. इनकी वजह से हमारा एक्सेंट बदलाना, पता है. हम क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है यहाँ पे आज. रिसेशन, मॉर्गेज तुम्हारे डबल हो गए. मैंने सुना बहुत महंगा हो गया. भिखारी नाइकी में घूम रहे. ये कैसा रिसेशन है, भिखारी नाइकी में घूम रहा है? हाँ भाई, भिखारी एयर जॉर्डन पहन गए. ब्रो यू गॉट सम मनी ब्रो. ओ भैया यार, ये क्यों मांग रहा है वैसे? Bro, you got some cash, you got some cash, bro. No bro, not carrying cash. I got, you want a tap bro, I got money. मैं कह रहा हूँ यार, you know, all my life I've stayed in West Delhi, but now I don't stay in West, now I stay in South of South Delhi, that is Faridabad. You guys know what is Faridabad? Yeah, हमारे वहाँ का रेडिंग. फास्ट में 20 मिनट ही है, फिर आगे गाड़ी आती है, फिर 20 मिनट और हो जाता है. सर क्या सुसु? जाओ जो बियर पियो, मुंह तो बह जाए. 5 मिनट हुए नहीं, शो शुरू हुए. अरे कौन बेज कलर की पैंट पहन के आया नहीं है? एक तो लड़के लोग लाइट कलर की पैंटें क्यों पहनते हैं भाई? तुम्हारा हल्का मूत निकलेगा, पूरा अमीबा की तरह फैलेगा. बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए लाइट पैंटें.
नहीं चल रहा है, मेरा तो नहीं पता चल रहा। मैं आया हफ्ता हो गया, विंबलडन चल रहा है यहाँ पे, वो मेरी वाइफ रिसेंटली बोल रही विंबलडन देखने चलते हैं। मैं कहा तुम्हारे खाना में चिड़ी चिक्का खेला किसी ने? विंबलडन देखेंगे, बड़ा महंगा है भाई। See guys, I've been married for about 6 years now. I've been married. Yeah, Shreya, I know she's my wife. I know. मेरे को मैं भूल ही गया था एकदम, पता है कि मेरी बीवी भी है। देखो जिसको नहीं समझ आ रहा मैं बता दूं क्या सीन है ये। I'll tell you क्या है ना ये। देखो हाँ vlog, there are a lot of people have seen my vlogs and I'll tell you what is vlogs in this joke. I'll tell you what is vlog. क्या है ना ये एकदम ये फैंस वगैरह नहीं है, ये दोस्त नहीं है, पता है। ये तो इन्होंने अपनी तरफ से चढ़ावा दिया है 35 पाउंड का। ये टिकट नहीं है, लिफाफा है रिसेप्शन का मेरे पास। इनको सब पता है। बाकी कमेडियन से लोग मिलते हैं ना, बिकॉज आई मेक व्लॉग्स आल्सो राइट। तो बाकी कमेडियन से लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? ओह लव योर फैन, लव योर वर्क मैन, लव योर दिस वीडियो। मेरे से पता क्या मिलते हैं? अरे तुम्हारे वो बाथरूम का पाइप फट गया था, ठीक हो गया? मैं भाई मैं कुछ और काम भी करता हूँ भाई, मैं बाथरूम का पाइप भी ठीक नहीं कराता सिर्फ यार। बताओ एनी कपल्स हियर लाइक 2 years 3 years 4 years व्हाटएवर? मोर देन इट्स ओके मैम, don't be upset about it. Tell me, do you guys fight? What's your name? Harpreet. And bhai Harpreet Jaspreet. Okay, ये क्या है? What is this stereotype? What is हाँ ठीक है पंजाबी ठीक है यार। क्या मुझे पंजाबी गुजराती कुछ समझ नहीं आता। मैं हूँ मतलब कपूर पंजाबी, पर मेरे हमारे घर में माहौल ही नहीं था। मैं अभी कॉमेडी में आके देखा पंजाबी वो वखरी हो, मैंने कहा हमारे बाप की फटी रहती थी क्या? एकदम शरीफ इंसान नहीं होते बेटा, लड़ाई नहीं करनी किसी से, सबको सॉरी बोल के घर आया करो दिन में। मेरे को नहीं समझ आता है सब। ठीक है हरप्रीत एंड जसप्रीत, किस बात पे लड़ते हो बताओ, स्पेसिफिक रीजन देना। ईगो होती है मेनली। नहीं इतना नहीं चाहिए मेरे को, इतना मेरे को ऐसे डीप रीजन नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक रीजन चाहिए। क्या है? गोल्फ? गोल्फ पे क्या लड़ाई हो रही है? हर रोज जाता है। हाँ हर रोज जाता है। आप पक्का भाई गोल्फ खेलते हो? क्योंकि इन मैम की आवाज सिर्फ कंचे खेलने वाली लग रही है। गोल्फ खेलते हो भाई? अभी कितनी अमीर प्रॉब्लम नहीं है ये। देखो वर्क फोर्स को आइडिया ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग यार। हु इज प्लेइंग गोल्फ? मैं जा पूछ के जाया करो भाई, क्यों? व्हाई डू यू गो फॉर गोल्फ एवरी डे? यू लाइक टू पुट द बॉल इन द होल। घर में मौका नहीं मिल रहा, वहीं कर लो। पता नहीं मैं सब कुछ गंदा कैसे बना देता हूँ। राहुल एंड शिखा, what is the specific reason on which you fight? She doesn't like London, so she wants to go back. She wants to go back. She doesn't like London. Shikha, why don't you like London? Where are you from, Shikha? From India. No. अरे ओ प्रीति सबरवाल, ठीक है। ये चकते पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही है और ये कबीर सिंह नहीं है, ठीक है? कबीर खान, सॉरी जो भी था उसमें। हाँ मुझे बेसिक आंसर आपको समझ आ गया था मैंने क्या पूछा है। बताओ शिखा जी क्या रीजन है? शिखा फ्रॉम इंडिया, टेल मी where in India are you from if I may ask? मैंने मेलबर्न में रहे हैं तो मुझे मेलबर्न जाना पड़ता है। आप अच्छा ओह, मुझे लगा मिट्टी की याद आ रही है। इसको तो ग्रेट ओशन रोड ज्यादा पसंद है। जी का वैसे कहाँ से हो आप? मतलब इंडिया में कहाँ से? हरियाणा। और इससे पूछूंगा ना मैं, ये गुड़गांव से भी नहीं निकलेगी, मुझे पता है ना। ये भाई हिसार पड़ता है अपना गौरव भाई, हिसार से ही। अरे हिसार में बर्गर किंग खुल गया है, हल्के में ले रहे हो क्या? हिसार को तगड़ी जगह बन गई, हाईवे निकल रहा है वहां से। छोड़ो मेलबर्न लंदन वगैरह, थोड़ा ओवर टाइम करेंगे, चलेगा शो। मजा आ रहा है आज तो, नहीं फील बन रही है थोड़ी।
अच्छी ऑडियंस आई है, तसल्ली से जोक सुन रहे हैं। गुड़गांव में भाई शो पे लड़ाई हो जाती है भाई कसम से। एक बार सिर्फ इस बात पर लड़ाई हुई कि सामने वाला बंदा लंबा था, उसको देख दो हट जाना, हट जा। उन्हें घूम के दमादम मारे। क्या करने के बंद कर रहे हैं आप? तो ये घर से बंडों के जो आती है ना, क्यों मन करे? Are you like one of the violent person in the room? कौन लंबे हैं? हो ये the scene is building up bro। करे कलेश करते यहीं पे आज, करते दोनों के वीजा वापस यार। मजेदार आगरा में पड़े यार, कलेश हो गया था, वापस आना पड़ गया। एक सेकंड, आपने छोटे लोगों को क्या बोला? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। Are we not human beings? Don't we deserve happiness? अरे भाई यार, मैं पता अच्छा खासा लंबा हो रहा था, वो मेरी 9th में बैठ में तो लंबी हाइट खींची झटके से एकदम। चाची के घर गया, ओए मुंडा कितना लंबा हो गया भाई। वो दिन और आज सेम। ये मेरी चाची ने रोकी मेरी हाइट, पता अपने लड़के को लंबा करने के लिए, मुझे पता है ना उनका। एक लड़की यहाँ से साड़ी में गई थी ना अभी, साड़ी पहन के पूरा भाई भारतीय सभ्यता को आज हम लेके चलेंगे। आज हमारे भारत का एक इवेंट है। भारत के इवेंट में हेलो मैम, हाँ जी नमस्ते नमस्ते जी, आइए चाय जी आइए बैठो। अरे भाई कितनी प्यारी साड़ी है। अरे नहीं मैम जी, बहुत अच्छी, वेरी नाइस साड़ी, वेरी नाइस, बिल्कुल अच्छी साड़ी। 90s में बहुत अच्छी लगती थी ये वाली। अभी अच्छी कांजीवरम आ गई है हमारे वहाँ। नहीं मेरा बहुत बहुत सुंदर साड़ी है मैम। क्या हुआ क्या बातें हो रही है उधर? पानी। ये ले लो एक बॉटल, तो ये ले लो, कोई बात। शेयरिंग इज केयरिंग नहीं, मेरे को बस ये नीचे उठ के कोई ना जाए। उधर दे दो मैम को, कोई नहीं। यू वेलकम। 3 पाउंड्स। टैप करा लो इनसे। भाई पैसे खर्चना एकदम ढूंढ करके निकले जा रहे भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लंदन प्रॉफिटेबल तो नहीं है, मैं बता रहा। प्रॉफिटेबल तो गुड़गांव ही है मेरे लिए। यहाँ जो कमाया नहीं उतना तो उड़ चुका है। अभी मेरे 10 दिन और बचे हैं। एक तो मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर सो नाइस, लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग अस, घर आओ, इंडियन खाना खाओ, है ना, हाँ दाल चावल खाओ, राजमा चावल खाओ। अबे तुम खाओ, हम रोज खाते हैं यार। हमें नहीं चाहिए बटर पनीर दाल चावल। आई वॉन्ट कॉफी एंड क्रोसॉन एवरी डे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फालतू। क्या फ्रांस जाना पड़ेगा? नहीं यहाँ भी है सर। तो आपको लग रहा है मैं बस एक हल्के से स्वाद के लिए फ्रांस चले जाऊंगा? वैसे होता तो दिल्ली में भी है, पर वहां मन से नहीं मानता खाने। जब मैदा खाना ही है तो भटूरे ही खा लो। यार मजा आ रहा है, पता है आज ईगो बूस्टिंग वाला शो है मेरा। मुझे लग नहीं रहा इतना फनी तो मैं हूं। तुम अच्छे मूड में आए हो, मत बोला कर भूसड़ी। Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. Plus India, USA, Canada, UK और स्कैंडिनेविया का टूर 2024 ऑलरेडी लाइव है। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। भाई की एडिट कर करके पट गई आज, पर मजा आ गया, वीडियो खत्म कर दिया हमने रात में। So if you like the video then do subscribe to the channel. Plus सारी टिकट डिटेल्स आ रहे हैं। See you.